So as I have discussed the fast, that means fast part हमें editorial part discuss कर देते थे, that is the 20th of 4, that means April 20th April the fast part it was discussed. So this would be the second part, and as I said in the morning session as well, it would be better to have a continuous effort যদি আমি দেবা to 1 year continuous effort in newspapers and all that current affair, that would be enough to crack this exam, that is UPSC and other PCS exam as well. So in this session I will talk the rest of the part of Indian Express which I left there in the morning session. So it was, first of all I will discuss here from the, like, this map is every day you have been also watching in the paper every day. That one is coming from the West Asia, and this is West Asia. In for the Indians people, this would be the West Asia, and for the European people, this is the Middle East. Now see, each year UPSC हर साल ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो मतलब मैपिंग वाला जो क्वेश्चन है हर साल पूछ रहा है. तो यहाँ से आपको क्या करना है, जैसे कि आपको ये गाजा स्ट्रिप यहाँ पे है, बस इसको आप नोट बना लेना यहाँ पे कि यस द गाजा स्ट्रिप इज शेयर, इट शेयर्स बॉर्डर विथ इजराइल, इट शेयर्ड बॉर्डर विथ इजिप्ट, इट शेयर्स border with Mediterranean Sea. So that is the, now you have to remember. And those places, that is the what, like the where the migrants are staying, the camp, important camps, migrant camps there, because they are also asking such kind of important camps. For example, the camps, migrant camps, they are also asking the migrant camps there. And West Bank, here you can see West Bank, that is the Jerusalem is the capital of, for the, they both are claiming for the capital. Here is the Dead Sea. Dead Sea also there, Jordan, the borders being shared with the Israel and Jordan के बीच में एकदम आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका बचाया कौन सा है, ये डेड सी होगा. डेड सी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज हियर इज बट आपको लाइमस्टोन्स, salt, these are the minerals comes from but this particular region. And also part of the Rift Valley, African Rift Valley runs through these particular regions up to the Turkey border. तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा. एंड जॉर्डन ऑल्सो गारमेंट सेक्टर में ना बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जॉर्डन आजकल. तो गारमेंट, स्पेशली द स्पोर्ट्स गारमेंट हियर प्रोड्यूस, एंड दे आर शेयरिंग ऑल्सो विथ इजराइल. द बॉर्डर इज बीइंग शेयर्ड विथ इजराइल एंड Saudi Arabia as well. So that is from the mapping part here. Then we will come to the next mapping part, and recently the Palestine. Palestine means what? Two nations here becomes, that is the Gaza and like West Bank. इन दोनों को मिला के हम बोलते Palestine. The Palestine is not a UN member because UN has not clarified or not accepted कि पाकिस्तान एक ऐसा देश एग्जिस्ट करता है, ठीक है, मेंबरशिप के लिए. वो ऐसे कुछ नहीं है. बाकी देखो बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट कर लेता है. तो यूएसए हैज ब्लॉक्ड दैट वन, द मेंबरशिप ऑफ द यूएन. 15 national that is the Security Councils drafted a resolution that is the Thursday that would have recommended for the 193 member of the UN General Assembly for the state of Palestine to admit the membership into the United Nations. The resolution got 12 votes in favor, with Switzerland, UK abstaining and casting its vote to be adopted. The draft, तो इनको क्या था, obviously I would say any of its 5 permanent members like the China, France, Russia, and United States to be adopted. The drafted resolution requires at least 9 council of member voting in favor. तो जो council of member है जो 15, इनमें से वोट चाहिए. With no vetoes by any. तो मतलब अगर किसी भी मेंबर को यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनना है तो जो 15 सिक्योरिटी काउंसिल है ना मेंबर, इनमें से एटलीस्ट 9 आउट ऑफ 15 चाहिए. उसके बाद जो आपका जो 5 परमानेंट कंट्रीज है ना, ये जो 5 परमानेंट कंट्रीज है, इनमें से कोई भी वेटो अगर लगाएगा तो भी फिर मेंबर नहीं हो पाएगा. तो ये अच्छी बात है. यहाँ से आपका एक क्वेश्चन मिल जाता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन. यहाँ से एक आप पीटी में क्वेश्चन बना सकते हो. यहाँ से भी एक क्वेश्चन आप बना सकते हो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन. यहाँ मैपिंग पे भी बन जाएगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाएगा. तो 2 क्वेश्चन तो ऐसे आपका बन जाएगा, ठीक है. अगर हम इंडिया की बात करें तो देखो यहाँ पे यूएन एज स्टेट ग्रांटेड बाय द जनरल असेंबली इन 2012. दैट मीन्स करेंटली जो पैलेस्टाइन है ना, नॉन मेंबर ऑब्जर्वेटरी स्टेट्स यूएन का. इट्स नॉट ए मेंबर, इट्स ऑब्जर्वेटरी मेंबर, ठीक है, पैलेस्टाइन. क्योंकि पैलेस्टाइन एज ए नेशन यूएस तक कभी नहीं चाहेगा.
क्योंकि यूएस एंड वेस्टर्न कंट्रीज दे हैव मेड द इजराइल। तो ठीक है, यहाँ पे आपको सो इज हैविंग ओनली ऑब्जर्वर स्टाटस, तो यहाँ से बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इंडिया अगर देखेंगे तो इंडिया ने तो मान लिया कि हाँ ऐसे देश एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप इंडिया में पूछे ना कि वेदर इंडिया हैज रिकॉग्नाइज्ड द पैलेस्टाइन एज अ नेशन, यस इंडिया हैज रिकॉग्नाइज्ड, इंडिया हैविंग इट्स ओन एम्बेसी आल्सो देयर। तो ये आपका वाला ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो मालदीव्स वाला पार्ट अगर हम देखेंगे, देखो इनका प्राइम जो प्रेसिडेंट था वो जेल से बाहर आ गया, क्या हो गया, ये हमारा मकसद नहीं है। सिंपल, मालदीव्स के साथ हमारा क्या रिलेशन है। ठीक है, जैसे कि आपको सबको पता है कि रिसेंट वी हैव having some sort of not very good relation with the Maldives because of the like statements coming from the top leader of the, and that to the president of Maldives who is a pro China leader। तो इसलिए हमारे साथ ऐसे कुछ खास रिलेशन मतलब खराब भी नहीं हुआ और उतना अच्छा भी नहीं है। मतलब अगर मतलब अच्छे से देखे ना, सही से बोलूँ तो ये मतलब वी आर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ कॉर्डियल रिलेशन विच यूज टू बी अर्लियर। इनके पहले जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट था उनका, सॉरी, तो उनकी टाइम पे जो था ना वो वाला रिलेशन हमारे पास अभी नहीं रहा। ठीक है, चलो फिर देखते हैं। देन यहाँ पे एक वॉल्केनिक इरप्शन दिखा है कि दैट इज व्हाट रुआंग। तो ये वाला क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि हाँ रिसेंट लेक ये जो रुआंग एक्टिव वॉल्केनो कहाँ पे, देखो इट्स नॉट दिस इज इंडोनेशिया एंड वन ऑफ द हाईएस्ट, इंडोनेशिया इज वन ऑफ द हाईएस्ट। अगर आपको पूछे दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोस है, तो ये इंडोनेशिया। ये कहाँ पे, इंडोनेशिया। वन होता है यहाँ पे क्राकाटोआ है, आपको सबको पता होगा। इफ मतलब बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं होगा भी, बट जिन लोगों ने नए नए हैं उनको लेके भी बता देता हूँ। ये जो क्राकाटोआ है ना, क्राकाटोआ, this is one of the deadliest volcanic eruption took place in 1980s। it was शायद not 1880s, sorry, it was 1880s पे एक बार बहुत मतलब खतरनाक वॉल्केनिक eruption हुआ था यहाँ पे क्राकाटोआ, जिसको विसुवियंस टाइप ऑफ वॉल्केनिक eruption बोलते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दिस वन that is रुआंग, we are having क्राकाटोआ, we are having Merapi Mount, Merapi also one of the deadliest active volcano of Indonesia। तो ये जो क्राकाटोआ ये बिल्कुल सुंडा स्टेट पे है, सुंडा स्टेट, माउंट मेरापी वहीं पे आसपास पे है। माउंट बोर्नियो भी है, माउंट ओंगोंग है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, माउंट ओंगोंग। तो दीज आर द एक्टिव वॉल्केनो। माउंट सिमेरू भी है यहाँ पे, सिमेरू। तो ये सारे एक्टिव वॉल्केनो इधर है। ठीक है, तो इसको भी आप याद कर लो। तो माउंट सिमेरू है, माउंट मेरापी, क्राकाटोआ, Angong। So these are the important active volcanoes also there. Why these active volcanoes lies there? Because of the tectonic effect, because of the tectonically active region from the both sides, three sides of this Indonesia is the one of the highest number of island। मतलब अगर किसी के पास सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा आइलैंड्स है ना, तो ये इंडोनेशिया है। आइलैंड्स सबसे ज्यादा किसके पास है आइलैंड, ये भी इंडोनेशिया। सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो किसके पास, ये भी इंडोनेशिया। तो ये वाला आपको चीज, और ये वाला यूपीएससी ओपीएससी ने भी लास्ट टाइम पूछा था, यूपीएससी में भी पूछा था ऐसे क्वेश्चंस कि इंडोनेशिया आपको सबको पता है कि कैपिटल रिसेंटली चेंज कर दिया, और यहाँ पे भी एंड ऑल्सो वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री। ओके, तो इंडोनेशिया ये वाला मैपिंग भी हमने देख लिया। तो मैपिंग दोनों क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। मालदीव का लोकेशन थोड़ा सा देख लेना, तो आपका मैपिंग वाला जो पार्ट है ना वो भी यहाँ पे साथ साथ हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम आते हैं कि देखो यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है। देखो आपको सबको पता है कि एज वी आर अवेयर तो इजराइल एंड इंडिया इज हैविंग प्रीटी गुड रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन तो अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोचो कि प्रीटी में कैसे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे क्वेश्चन बनाएगा ना कैसे बनाएगा। ठीक है, अब मेंस पे क्वेश्चन आ सकता है, दिस इज द ट्रेड रिलेशन विथ ईरान एंड ट्रेड रिलेशन विथ इजराइल। सो वी आर हैविंग रिलेशन विद द बोथ द कंट्रीज। ठीक है, ईरान के साथ अगर हम देखेंगे, दिस साइड इज ईरान साइड, ठीक है, दिस साइड ईरान साइड, इजराइल साइड, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, प्रीलिम में और भी कुछ तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि ठीक है कौन सा टेक्नोलॉजी बोलो क्या है जो इजराइल से आया है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये न्यूज पे है। ठीक है, एक तो मैपिंग वाला क्वेश्चन हो सकता है, एक तो इंटरनेशनल रिलेशन वाला क्वेश्चन हो सकता है। तो ऐसे करके 2-3 क्वेश्चन अगर हम बना लेंगे ना यहाँ से, तो हमारा पीटी का जो यूपीएससी का जो प्रीलिम वाला जो एरिया है ना वो कवर हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो यहाँ से भी आप देख लेना। तो ट्रेड रिलेशन अगर देखेंगे, एक्सपोर्ट जो है था ना इजराइल, दैट मीन्स इंडिया की एक्सपोर्ट टू इजराइल, दैट इज द डीजल एंड कॉट एंड पॉलिसिस डायमंड जाता है, और इंडिया का जो इंपोर्ट इंडिया करते हैं वो रॉक डायमंड करता है, यहाँ से पॉलिश होके जाता है एंड पॉलिश डायमंड्स। तो ये डायमंड का बिजनेस बहुत चलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर हैविंग
the export that to be what 8.4 billion and import is 2.3 billion. That means we are having trade surplus with Israel, with both the countries, with both that means here when it comes to the what, there is export from India to Iran 1.03 billions. Organic chemicals आप देख सकते हैं, that is 113 millions, and that is what key export फ्रॉम इंडिया टू, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मिथानल, ये आपका हो गया मिथानल, हो गया पेट्रोलियम, हो गया, ठीक है। तो मतलब बोथ द साइड्स अगर हम देखेंगे तो दोनों साइड पे वी आर हैविंग व्हाट दैट टू बी द we are having both side trade surplus. With Israel we are having trade surplus, with Iran as well trade surplus. तो दोनों के साथ हमारा जो ट्रेड है ना वो सरप्लस है, बस इतना हमें याद करना है। और कौन सा जा रहा है, जैसे कि इनके साथ डायमंड हो गया, डिफेंस भी होगा, डिफेंस टाइज वी आर हैविंग वेरी गुड, डिफेंस टाइज हो गया इनके साथ ठीक है। ऑर्गेनिक वगैरह 43 ये सारे जो भी है ट्रेड तो पहले से थोड़ा कम हो गया अभी, क्योंकि वाई बिकॉज as the USA has frequently imposed or used to impose the what restriction and the अब सबको सैंक्शन वगैरह जो लगाते हैं ना, इसके चलते थोड़ा बहुत ट्रेड का जो मूवमेंट है वो कम हो गया, बाकी इट्स फाइन। तो यहाँ से भी आप एक प्रीलिम क्वेश्चन ऐसे बना सकते हो, ठीक है, ट्रेड के ऊपर का लेके एक प्रीलिम में, एंड मीन्स बोथ वे यू कैन ऑल्सो मेक द फ्रॉम both way you can make the questions from this particular region. And I think this would be the pretty good idea to have the each day some sort of prelims and mains question अगर यहाँ से हम रोज बनाएंगे ना, ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू ज्वाइन टू आवर टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल। ओके, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है, वहाँ पे आपको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आई एम थिंकिंग टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ आइडिया, ऐसे क्यों इम्प्लीमेंट करूँ आगे जाके, आपको लिए बेनिफिट रहेगा सबके लिए। कम्स टू द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि एमपीसी ने बोला कि प्रेडिक्ट्स के स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा, इट्स वेरी गुड। बट आपको यहाँ से प्रीलिम क्वेश्चन कैसे बनाना है कि मॉनेटरी पॉलिसी कितना मेंबर होता है, 6 लोग होता है, आरबीआई से 3 आता है, 3 आता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो 3 लोग आते हैं आरबीआई की तरफ से, 3 लोग आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो 6 आदमी बैठते हैं। चेयरपर्सन को होता है ऑब्वियसली द चेयरपर्सन ऑफ दैट इज द वर्ड गवर्नर ऑफ आरबीआई, चेयरपर्सन, उनके पास वेटो पावर भी होता है। एंड आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज हैविंग द राइट्स टू व्हाट मैनेज द इन्फ्लेशन। ओके, इनके पास क्या है कि इन्फ्लेशन मैनेज करना है एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को स्पॉर करना है, बस इतना ही आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। एंड आई वुड अर्ज एवरीवन टू व्हाट do such kind of exercise and that would be a pretty good exercise I would say. Now next come to the ONGC, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा कौन सा प्रीलिम में कैसे में, तो वेनेजुएला। नाउ लेट्स से if I make a questions के from के how many from which of the following countries India does not are getting the oils, तो पहले बात है कि वेनेजुएला ओपेक का मेंबर है, ठीक है, ये ओपेक का मेंबर हो गया। ना लेट से काल एक प्रीलिम, अगर काल कोई भी एक एग्जामिनेशन एग्जाम दे रहे हो आप, वहाँ पे एक क्वेश्चन बन गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन फ्रॉम वेयर इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट द ऑयल, तो यहाँ पे वेनेजुएला इंपोर्ट करता है, यूएई, सऊदी, ईरान, ये सारे के सारे जो मतलब ऐसे आपको थोड़ा बहुत कहीं पे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमारा टारगेट है कि हाँ ठीक है वेनेजुएला से भी ऑयल हम मंगवाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अभी सैंक्शन यूएसए ने लगा दिया, तो सैंक्शन के चलते यहाँ पे देख सकते कि दैट इज द बाय व्हाट हुम यूएसए ने थोड़ा बहुत सैंक्शन लगाया, तो हमें थोड़ा कट ऑफ करना पड़ेगा, अब बस उतना ही हमें याद करना है, ठीक है। चलो फिर आगे स्पोर्ट्स वाला वो तो हम नहीं पढ़ेंगे, तो बाकी वो भी फिर आईपीएल नहीं चाहिए। नाउ कम्स टू द एनवायरमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये वाला पोर्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, अगर आप देखोगे तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इकोलॉजी पार्ट पे अगर हम पहले बार यहाँ पे तो नैनो यूरिया के बारे में देखो, जिसको ना गुण हो over the nano urea. What exactly meaning? See, essence क्या है आप सबको पता है, and everybody aware of the fact that what nano urea, the government is trying to promote the nano urea. Nano urea is 2 type. One is the general nano urea and one is nano urea plus. So 2 type of nano urea is there. One is nano urea and one is nano urea plus. ठीक है, 2 तरह का nano urea होते हैं। पहले बात, यूरिया जो होता है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है, एंड वाई मतलब वी आर प्रोड्यूसिंग मोर यूरिया बिकॉज इंडियन सॉइल इज डेफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। और नाइट्रेट एंड नाइट्राइट दोनों आपको सबको पता है कि नाइट्रोजन क्या होता है, फ्री नाइट्रोजन। तो ये जो नानो यूरिया दे आर
स्पेशली क्या होता है, लिक्विड यूरिया होता है. And when the government started producing the nano urea, that time we were having the nano urea 30 to 50 नैनो स्केल. क्या होते हैं 30 to 50 नैनोमीटर, जिसको हम बोलेंगे क्या 30 to 50 नैनोमीटर. सबको पता है 1 वट 9 to the power -10 होता है, ये होता है नैनो. 1 नैनोमीटर क्या होता है 1 इंटू 9 to the power 10. ठीक है, ये होता है 1 नैनो स्केल. तो इनका जो नैनो स्केल है ना नैनो यूरिया, दैट इज द 30 to 50 नैनो स्केल. ठीक है, नैनोमीटर जिसको हम बोलेंगे नैनोमीटर. तो ये वाला आपको पूछ सकता है कि जो नैनो यूरिया है इसका क्या है मीटर, 30 to 50 नैनोमीटर. ना नैनो यूरिया कैसे होता है, लिक्विड होता है. तो जनरली एज यू माइट हैव हर्ड अबाउट एंड इफ समबडी इज हैविंग, अगर किसी ने भी खेती वगैरह किया है तो उनको भी पता चला है कि हाँ जो यूरिया होता है ना, जनरल यूरिया, वो तो सॉलिड होता है. ठीक है, इंडस्ट्रियल यूरिया जिसको हम बोलते हैं सिंथेटिक यूरिया, वो तो सॉलिड होता है. बाकी जो नैनो यूरिया वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट वन इज द लिक्विड यूरिया. नाउ पॉइंट टू बी डिस्कस हियर इज दैट एज आई सेड, सो नैनो यूरिया, नैनो डीएपी एज वेल. ओके, नैनो डीएपी एज वेल. तो ये मार्केट पे अभी आ गया. ना पॉइंट क्या है यहाँ, डिबेट क्या है, डिबेट इज दैट गवर्नमेंट हैज सेड कि गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है नैनो यूरिया अब हम क्या करेंगे, अगले 3 साल तक 2-3 साल तक नैनो यूरिया बेचेंगे, चलो इसको मार्केट पे छोड़ दो. ठीक है, मार्केट पे छोड़ दो, इसको सेल आउट करो. द गवर्नमेंट सेज द नैनो यूरिया प्लस, मैंने बोला कि नैनो यूरिया प्लस, इसको कौन बना रहा है, इफको. ध्यान से याद रखना, एक्सक्लूसिवली द नैनो यूरिया प्लस इज एक्सक्लूसिवली डन बाय द इफको. यहाँ पे और कोई नहीं बना रहा है. ठीक है, इफको बना रहा है ना. इसमें क्या है, नैनो एंड नैनो प्लस में डिफरेंस क्या है. देखो नैनो एंड नैनो प्लस में डिफरेंस है कि जो नाइट्रोजन का कंसेंट्रेशन नैनो में क्या था 4% था, जो नानो में क्या है 4%, नैनो प्लस पे 16% नाइट्रोजन कंसेंट्रेशन. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द नैनो एंड नैनो प्लस यूरिया. और जो कन्वेंशनल यूरिया होता है ना वहाँ पे 46% होता है. तो आपको जो नीम कोटेड यूरिया होता है ना वहाँ पे 46% नाइट्रोजन होता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी, एक तो होता है आपका यूरिया कितना टाइप का होता है, एक तो होता है हमने जैसे कि बोला कि नॉर्मल यूरिया, एक होता है नीम कोटेड यूरिया, जैसे कि नीम ऑयल स्प्रे करके उसको कोटेड किया जाता है, उसको बोलते हैं हम नीम कोटेड यूरिया. ठीक है, तो नीम कोटेड यूरिया में 46% नाइट्रोजन रहता है. उसके बाद आता है आपको नानो यूरिया जिसमें 4% का नाइट्रोजन होता है. फिर आता है आपका नानो प्लस जिसमें 16%. तो फार्मर अभी क्या ना है, उनको अगर वो जो कन्वेंशनल यूरिया और नीम कोटेड यूरिया दे हैविंग मोर नाइट्रोजन एज कंपेयर टू दिस व्हाट नानो एंड नानो प्लस, सो दैट इज व्हाई दैट इज नॉट यील्डिंग सो मच. तो इसमें जो प्रोडक्शन लेवल है ना वो कम हो रहा है. कन्वेंशनल नानो में जो प्रोडक्शन होता है जो वो कम हो रहा है, इसलिए उनका कहना है कि हम लोग नहीं जाए. तो ये मतलब दिक्कत है. तो फार्मर्स आर नॉट विलिंग. तो ठीक है, एक्सपोर्ट द एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एंड द एक्सपोर्ट feared, sorry, that could hamper the agricultural productivity because of the application of the nano plus and the nano urea. So many trials has been given. So trials, the government also used the nano plus to substantially reduce the import of the chemical fertilizer. Government exactly pushing this urea to reduce the import fertilizer because India is the second largest importer of the fertilizer and one of the largest, second largest consumer of the fertilizer as well. And especially we are importing maximum from the Russia, from the what? Russia, Brazil as well. So many countries we are also importing that one. तो गवर्नमेंट का टारगेट है कि जो हमें सब्सिडीज हो रहा है, जहाँ पे जो एक्सपोर्ट पे बहुत सारे पैसा जा रहे हैं, सॉरी इंपोर्ट में, उसमें उसको कम करना है. एंड प्लस नैनो यूरिया वुड बी बट एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस आफ्टर द इंडस्ट्री. सो दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टारगेट ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेस फ्रॉम द एग्रीकल्चर. सो दैट आवर टारगेट, दैट एनडीसी टारगेट, जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, सॉरी जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो टारगेट है, दैट इज द COP21 में हमने जो बोला था कि वी विल रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेस और उनका जो इंटेंसिटी, सो ये भी आप अचीव कर सकते हैं. लेकिन दिक्कत ये है ना कि फार्मर का कहना है कि द apply by through the application of this urea there would be the less fertility, there would be less yield as well. Here is the some example is given, like here you can see Punjab, for instance, Punjab, Haryana, Madhya Pradesh, Tamil Nadu states where the farmers tried to use the nano urea but found it insufficient and costly. It is what? Costly, insufficient. For example, that Satpal Chaudhary is a 64, that means what is a person who used nano urea in 2022 with the water crops. It sprayed nano urea on the field and realized that 3 weeks that it had no impact, and then he went back to use the conventional urea as he informed. So like that when Praveen Param is there, another person from the Madhya Pradesh, who also said the same things, that he mixed the nano urea and did not
डिलीवर द प्रॉमिस, तो मतलब उसमें जो किया गया था कि दैट इज द बेनिफिट इज नॉट कमिंग आउट. So that is why. So these are the case studies again from the Haryana. The case studies is coming that, so they are simple. That is the what the peoples are not getting back. The peoples are yielding यहाँ पे कम हो रहा है. तो बस यहीं पे मैं इसको खत्म करूंगा, ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ को. तो कहना है कि फार्मर्स का जो जितना यील्ड होना चाहिए ना उतना नहीं हो रहा है. तो ये आपका बस हो गया, पूरा खत्म कर लेता हूँ इसको, क्योंकि ये बहुत लंबा खींचेगा नहीं. तो ठीक है, फिर उसको इतना पे ना फिर आता है यहाँ पे ना. यहाँ पे और एक एक्सक्लूसिव आर्टिकल्स दिया गया, ये बहुत बढ़िया होते हैं. देखो हिंदू में ऐसे नहीं मिलता, इसलिए मैं इसको डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि वी वर हैविंग दिस काइंड ऑफ आर्टिकल्स ना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द लाइक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वगैरह बहुत आता है यहाँ पे. ये देख सकते ना, चारू मसल. दिस चारू मसल is invasive species which has comes from the across the I would say what Atlantic Ocean. तो ये invasive species कहाँ पे आ गया? That is what लेक, हमारे यहाँ पे जो लेक है किसको हम लेक बोलते हैं? सो बैक वाटर. ओके ठीक है, दैट इज द बैक वाटर. कहाँ पे? सो द बैक वाटर रीजन ऑफ पुलिकाट लेक. सो पुलिकाट लेक आप सबको पता है आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु बॉर्डर पे है. सो इन दिस पर्टिकुलर रीजन द चारू मसल्स, these are the invasive species, and the hard cell, they develop what hard cell on the surface you can see. So they are creating a layer on the floor of the lake, that is the pulicat lakes. Hence the prawns, crabs, इनका concentration कम हो रहा है because they are not able to lay their eggs and their houses has been depleted, and they are depleting the oxygen as well, and they are dominating the I would say what the native species. So that is why the overall the fishing concentration and the fish production and the crab prawns production in this particular region is rapidly declines. The reduction of the prawns, crabs, and the fishes life, and even those peoples, those who used to that is what go to that particular backwaters, pulicat lakes for the catching of the fish, when they enter into the water in barefoot, their foots are cutting across. So they are cutting because of the sharp cell. This sharp सेल, इनके पास जो ये जो सेल है ना, इसमें पैर कट रहा है लोगों का. क्योंकि अगर यहाँ पे सोचो कि किसने पैर डाल दिया इसके ऊपर तो पैर कट नहीं जाएगा. तो जो लोग मच्छी मारने जाते हैं यहाँ पे, वो तो कन्वेंशनल हमारे यहाँ का जो फिशरमैन है वो तो ऐसे ही जाते हैं, मतलब पानी में घुस जाता है, फिर ऐसे करते हैं. तो ये दिक्कत हो रहा है. तो दैट इज वाई कि गवर्नमेंट को ये बात भी बोला गया है कि भाई कुछ करो. तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर रहे है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, वी विल लुक इनटू द मैटर, and otherwise the native species खत्म हो जाएगा, and there will be the productivity of the aquatic water, but that backwater that वो भी बहुत खत्म हो जाए. तो इसलिए ये आपको पूछ सकता है कि हाँ, ये जो चारू मसल की ये क्या है, एक इन्वाजिव स्पीसीज, ये कहाँ पे दिखता है? ये वेमनाड में भी पाया जाता है, अपार्ट फ्रॉम दैट ऑस्टोमुडी, केरला. सो दिस आर द पर्टिकुलर रीजन, दैट इज दिस चारू मसल्स फाउंड इन केरला, वेमनाड, ऑस्टोमुडी. नाउ इट्स कम्स टू पुलिकाट. इट मे फाउंड एज वेल चिलिका. यहाँ पे भी हम मना नहीं कर सकते, चिलिका के भी आ रहा है. So that is also coming for the Chilica. It's also coming to the Chilica as well. Okay, this one is also coming to the Chilica. ठीक है, तो ये चिलिका भी आपको देखने मिल जाएगा. देन अपार्ट फ्रॉम दैट ये कहाँ से आ रहा है? तो इसका जो सोर्सेज है ना, ये बालास्ट वाटर. ठीक है, तो ये जो सोर्सेज है ये बालास्ट वाटर है. तो ये आपको प्रीलिम पे पूछ सकता है कि बालास्ट वाटर क्या है. ना देखो, बालास्ट वाटर क्या होता है, ये तमिलनाडु केरला पे अगर आपको पूछे ना कि वाई मेजोरिटी ऑफ such kind of invasive species are coming in and they are found in particular that is what Malabar coast and Coromandel coast, because of the ballast water. Then what exactly that ballast water? Ballast water क्या होता है? ये सीप जो होता है ना, बहुत मर्चेंडाइज सीप होता है. आप सबको पता है सीप जो होता है बड़े बड़े सीप होता है. ठीक है, ये जो बड़े बड़े सीप होता है ना, ये जब पानी में तैरता है ना, इनको बैलेंस करने के लिए ये वाटर ले लेते हैं अपने अंदर, वाटर इनटेक कर लेते हैं वाटर. तो जो वाटर ये लेता है खुद को बैलेंस करने के लिए, उस वाटर को बोलते हैं बालास्ट वाटर. ठीक है, इस सो दैट इट कैन हैव द ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द सीप, एंड दैट वुड बी व्हाट विथस्टैंड टू द वेव्स. जो सीप मतलब मिड ओशन पे जो वेव्स आता है ना, ट्रांसवर्स इफेक्ट को कम करवाएगा. क्या करेगा? जो ट्रांसवर्स इफेक्ट है ना, उसको वो कम करवाता है. तो बालास्ट वाटर सीप पे यूज होता है. सोचो कि किसी एक सीप ने, नाउ वन सीप, लेट्स इमेजिन कि ये सीप तमिलनाडु से निकला और अमेरिका गया, वहां से कुछ सामान लिया, फिर आ गए तमिलनाडु. तो यहाँ पे आने के बाद वो वाटर जो खुद के अंदर जो वाटर लिया था ना, उसको चेंज कर लेगा. तो वो पानी जब छोड़ेगा,
केरला और लेट से तमिलनाडु कोस्ट पे, उसके साथ बहुत सारे मराइन ऑर्गेनिज्म जो उन्होंने अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन से, मतलब जब व्हेन इट टुक द वाटर इनसाइड द सी, दैट वुड बी अगेन रिलीज बैक टू हियर। तो उसके साथ साथ क्या होगा कि इन्वाजिव स्पीसीज आ जाते हैं और ये डैमेज कर रहा है इकोसिस्टम को। तो ये एसेंस हो गया। इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। देन जो लैंडमार्क डिसीजन आया है ना, ये बोला बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन। तो बॉडिक्स ने बोला कि क्लाइमेट जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि क्लाइमेट जस्टिस। देखो इसके ऊपर भी एक प्रीलिम पे क्वेश्चन बन सकता है ना। क्लाइमेट दैट मीन्स ए गुड क्लाइमेट, सी क्लाइमेट जस्टिस व्हेन सुप्रीम कोर्ट इन द रिसेंटली सेड, so that is MK रंजीत सिंह वर्सेस यूनियंस ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जैसे कि इन केस ऑफ द व्हाट द सुप्रीम कोर्ट लेटेस्ट रूलिंग द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स केस MK रंजीत सिंह वर्सेस द यूनियंस, ओके, pushed the environment expanding the horizon of constitutionally guaranteed fundamental rights। इसने सुप्रीम कोर्ट ने बोला, मतलब आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी एंड आर्टिकल 21 दैट टू बी व्हाट फंडामेंटल राइट्स ऑफ राइट टू लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी। तो ये जो वाला हो गया ना आपका, ये वायलेट होता है इफ एनी रीजन डज नॉट हैव गुड सॉर्ट ऑफ क्लाइमेट, दैट मीन्स दैट रीजन, सो दैट इज व्हाट वायलेंट ऑफ आर्टिकल 14 एंड 21। तो ये वाला आर्टिकल्स भी दिया गया। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड इन टर्म्स ऑफ द क्लाइमेट जस्टिस, सो दैट द वर्ल्ड many countries will also follow the same. So great Indian bustard population 150 population is left in Gujarat and Rajasthan, सबको पता है। वो वहाँ पे क्या ना कि मतलब बहुत सारे जो इलेक्ट्रिसिटी वायर जाता है वो उसकी वजह से दिक्कत हो रहा है। तो ये मैंने पहले से एक वीडियो बना के रखा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के ऊपर, उसको आपने देख लेना, जो लोग नहीं देखे हैं उसको देख लेना। बाकी हमारे वी आर ऑल्सो हैविंग वट दैट इज द बायोडाइवर्सिटी एक्ट 1992 to restore the 26 million hectares of the deforested and degraded land until 2030, UN Convention, combat desertification 1992 with the clinical habitation. So these are the target we have need to achieve. तो ये था आपका पूरा आज का जो सेकंड सेशन का डिस्कशन। होप यू विल हैव मेनी ऑफ द MCQs, यहाँ से बहुत सारे MCQ भी बन जाएगा। एंड अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो मतलब कमेंट कर देना, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट as much as possible. Thank you with this. Now we will have the another session. Thank you everyone.